सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਕਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਬਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥੇ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖ ਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
केते अगणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केते दुख भूख सदमार, ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणै होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोह खाए, आपे जाणै आपे दे, आखै से पे के ही के, जिस नो बख्शे सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आभै मुल लै जाए, अमुल पाए मुल असमाह, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बख्याण, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मोन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करेह, ताख न सकै केई के, जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाणै साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक संखा, केते बावण हारे, केते राग परिस्यो कईन, केते गावण हारे, गावै तोनो पौण पाणी बੈ संतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त लिख जाणै, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर बर्मा देवी, सोन सदा सवारे, गावै इंदे दासन बैठे, देवतियां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदां नाले, गावै मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, 68 तीर्थ नाले, गावै जोध मां बलसूरा, गावै खाणी चारे, गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावै जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई। मुंदा संतोख सरमपत झोली, ध्यान की करੈ विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोए कार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख होए, लख होवै लख बीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म,
केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, कर आनंदो सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै त अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बजाओ बेटा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम लोग उसे बड़े भागों वाला कहते हैं जिसके पास बहुत धन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या उसे बड़े भाग्य वाला कहते हैं, बहुत बड़े भाग्य हैं इसके कि इसके घर में बहुत सारे पुत्रों ने जन्म लिया है, इसका परिवार बड़ा है, उसका कारोबार बड़ा है, उसकी पहुंच बड़ी है, उसका ओहदा बड़ा है। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक कहते हैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़े भाग्य उसके, क्लियर कट कह दिया यहाँ पे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, कहते मेरी नज़रों में सबसे बड़े भाग्य उसके जो गुरु की शरण में आके सत्संगत में आकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब दो बड़े भाग गुरु सिखा के जो गुरु चरणी सिख पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के चरणों में आके पढ़ गया, जिसे सत्संगत में बैठकर आनंद आने लगा,
जिसका मन सत्संग में जुड़ गया, उससे बड़े भाग्य किसी के हो ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी को मिलो, किसी के साथ बैठो तो उसकी बातें सुनो तो मन करता है बिजनेस बढ़ाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की संगत में बैठो तो मन करता है कि जैसी संगत में बैठो वैसी रंगत होने लग जाती है। जिसकी भी संगत में बैठोगे, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो आपको अपने साथ जोड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी न किसी संगत में बैठोगे, जैसे उसके विचार होंगे आपके मन में वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। पर पातशाह कहते हैं कि जिससे मिलकर, जिसकी संगत करके प्रभु याद आ जाए, उसे सत्संग कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल ये सत्संग नहीं है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में आके हम बैठे, ये सत्संग है, उत्तम सत्संग है। पर कहीं 4 दोस्त मिले, 2 मित्र मिले, बात प्रभु की हो रही हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में अकेले बैठे हो, मोबाइल लेकर बैठे हो, फालतू चीजें देख रहे हो, सत्संग नहीं। कीर्तन सुन रहे हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथा सुन रहे हो, विचार सुन रहे हो किसी महापुरुष के, सत्संग है। कोई किताब पढ़ रहे हो जिससे गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़े, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर कट कह दिया है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको, जहाँ पर नाम की बात हो रही है वो सत्संग है, और जहाँ पर नाम की बात नहीं हो रही वो सत्संग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराबी के साथ बैठेंगे, लेबल लग जाएगा शराबी का, चाहे पी रहे हो चाहे नहीं पी रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेबल की कीमत होती है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। जुआरी के साथ बैठेंगे, चाहे ना खेले, लोग गुजरने वाले कहेंगे ये भी जुआरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे आके बैठेंगे, लेबल लग जाएगा सत्संगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा लेबल है। सत्संगी लोग विश्वास करने लग जाते हैं। जो संगत में अमृत लौट के आते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए कई लोग करप्ट लोग, कई लोग फरेबी लोग, चीटर्स यहाँ पे स्पेशली आते हैं कि लोगों का विश्वास जीत जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप सबको पता मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु उनका भी भला करे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में एक पॉइंट यहाँ पे दास बता दें, बहुत कीमती है, समझ में आ जाए तो। हम अक्सर उंगली उठाते कि फलाने ने मुझसे धोखा कर दिया, मैंने ब्याज पे पैसे दिए वापस नहीं दिए, मैंने इन्वेस्टमेंट, मुझे कहा कि बिजनेस करेंगे मिलके बड़ी कमाई होगी, और मैंने पैसे लगाए, फिर वो धोखा दे के भाग गया। असल में अगर बहुत ध्यान से आप विचार करेंगे, हमें लूटता है हमारा लालच। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाला कोई हमें लूटती है हमारी लालच, हमारा लोभ। हम लालची बन जाते हैं, कोई स्कीम निकालते हैं, हर साल न्यूज़ आती है कि फलाना भाग गया, फलाना भाग गया। स्कीम निकालते हैं, इतने लगाओ इतने मिलेंगे, हम जाते हैं देने। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, लालच वश होकर, और फिर कहते कि फलाने ने लूट लिया। नहीं, लूटता हमारा अपना लोभ है, ये कृष्ण जी कहते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई, बात चल रही है सत्संगत की। पातशाह कहते हैं, कितनी प्यारी बात है, और शब्द के थोड़े से अर्थ समझ लें। धन धन भाग तिन भगत जना, उन भक्तों के भाग्य बड़े हैं। किसके? जो हर नामा हर मुख कहते हैं, जो नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भाग्य हैं उनके जो नाम जपते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना, गुरु अमरदास जी क्या कहना चाहते हैं। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सर्वणी सुनते हैं, जो अपने कानों से नाम को सुनते हैं। इसके ऊपर पूरा प्रकरण लिया था कि कानों से सुनना क्या होता है। हम गाते हैं, सुनते नहीं हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुरत जुड़ जाए शब्द से, कानों से भीतर आवाज़ चली जाए, तो संत की पदवी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सर्वणी सुनते हैं। कई बार श्री जपजी साहब जी का पाठ करते हैं,
खत्म हो जाता है, अचानक ध्यान आता खत्म हो गया, क्योंकि कान सुन नहीं रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें पढ़ रही हैं, रसना बोल भी रही है, कान सुन नहीं रहे। जिस दिन रसना सुरत और कान एक हो गए, संत की पदवी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिन साध जना, हर कीर्तन गाय गुणी जन बनते हैं। वो साधु धन है जो उसका कीर्तन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना गुरुमुखा, जो गुर सिख ले मन जिनते। वो गुरुमुख धन है, गुरुमुख होते ही वो हैं जो अपने मन को जीत ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुर सिख ले, जो गुरु की शिक्षा ले, गुरु से शिक्षा ले। यहाँ पर हम आके क्या करते हैं, जो गुरु अमरदास जी हमें समझा रहे हैं, आज इस शब्द में शिक्षा ले रहे हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शिक्षा मैं नहीं दे रहा, ये शिक्षा गुरु दे रहा है, क्योंकि गुरबाणी के आधार पर बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हमें शिक्षा दे रहा है हम सबको कि क्या करना है, हमें समझा रहा है कि बड़े भाग्य किसके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भी लाइन आई जिसमें कहा है कि जिसके पास बहुत धन है, बड़े भाग्य हैं, एक भी लाइन आई। पर हमारी नज़र में सबसे पहला पॉइंट होता है पैसा कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका तो नाम भी नहीं आया यहाँ पर, उल्टा मायाधारी को कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन कमाना गलत नहीं है, अमीर बनो, बहुत कुछ हो, पर सुरत शुक्राने में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में कहा गया है, मायाधारी अत अन्ना बोला। जैसे ही धन आता है मत बदल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा फिर, कि जैसे ही धन आता है इंसान का फितरत ही बदल जाती है, नियत ही बदल जाती है। इसलिए कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। विरले होते हैं जो बहुत धन कमा के भी विनम्रता में रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरले जो बहुत धन कमा के भी अमृत लौट के नाम जपें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ऐसे ऐसे अमीर लोगों से मिलता है साथ संगत जी, ऐसे ऐसे लोगों से जो 100-100 करोड़ रुपया दिन का कमाते हैं। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ, पर जब उनसे कहो ना कि अमृत लौट के नाम जप लो, कहते दान जितना मर्जी करा लो, नाम नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी कैसे कह सकते हो बड़े भाग्य हैं उनके, कैसे कह सकते हो? एक दिन सब छोड़ के जाना ही है, जो भी इकट्ठा किया, कितना भी किया, जाना ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो साथ में जाना है वो है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करने से जितना दान करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, मन को चैन केवल नाम में है, सत्संगत में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी क्या पढ़ा था सिमरन में, शब्द कौन सा था? सात संगत सच खंड है। सचखंड क्या है? हेवन। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जब ऐड चालू की कि चालिया गोल मैदान पे, तो लोग कहते हैं हेवन डेज आर बैक, कि स्वर्ग के दिन वापस आ गए। स्वर्ग है तो यही है, सच है, पर ज़रा विचार करके देखो, स्वर्ग में केवल 40 दिन रहना है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल 40 दिन स्वर्ग में। आपको पूछा जाए मरने के बाद स्वर्ग में जाने कितने दिन रहना, तो क्या कहोगे? हमेशा के लिए कि 40 दिनों के लिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हेवन डेज है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं है? जो अमृत वेले हमेशा उठता है, रोज़ नियम निभाता है, वो तो है ही हेवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कह रही है साध संगत सचखंड, यही सचखंड है। कहे कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। कबीर जी कहते मुझसे पूछो, कोई कहता है बैकुंठ ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कहते मुझसे पूछो। सत संगत जहाँ पे आप जुड़े बैठे हो, इसके बड़ा कोई स्वर्ग है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने प्रमाण है गुरबाणी में। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल किया, एक पॉइंट बीच में याद आ गया कि मैं सत्संग में बैठा था, मैंने अपने आसपास देखा कि जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं पूरा दिन झूठ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन गलत काम करते हैं। मैं उनको जानता हूँ कि वो बहुत गलत काम करते हैं, पर मेरे आसपास बैठे हैं सत्संग में, तो क्या उनकी बुरी वाइब्रेशन मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला पॉइंट दास यहाँ पे बता दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मेहर करे हमारी अवस्था बन जाए।
महापुरुषों के वचन हैं, पूर्ण महापुरुषों के। जब हम किसी का अवगुण देख रहे होते हैं कि ये शराबी है, ये पूरा दिन झूठ बोलता है, या जैसा भी जो भी पॉइंट है, जब हम दूसरे के अवगुण देख रहे होते हैं, दूसरे के पाप देख रहे होते हैं, महापुरुषों के वचन, उस वक्त हम एक पाप कर रहे होते हैं अवगुण देखने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल भी आना कि ये पापी हैं, ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं भी पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे का पाप देखते हैं, एक गुनाह देखते हैं, एक गुनाह कर रहे होते हैं, एक पाप कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो गुरु सुमत बख्शे हमारे मन में कभी ये भाव ही ना आए कि फलाना गलत आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सेकंड पॉइंट, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। पहले भी इस पंक्ति के अर्थ किए गए, पर कितना दुखता है ये पॉइंट, कितना टच करता है। उन्होंने क्या पूछा कि मैं संगत में बैठा हूँ, आसपास मेरे ऐसे लोग बैठे जो पूरा दिन झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, मुझ पे उनके वाइब्रेशन का असर नहीं होगा? नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो सत्संगत में आकर बैठ गए हैं। ये सत्संगत क्या है आज समझ लें अच्छी तरह से। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। पातशाह कहते हैं जैसे जहर शहद की मक्खी है, एक डंक मार ले सूझ जाता है। मुझे कई बार डंक पड़ा है उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैं थोड़ा जंगलों वगैरह में जाता रहता हूँ तो मक्खियाँ होती हैं, पूरा सूझ जाता है, अपना डंक अंदर छोड़ जाती है। और डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है कि अगर 100 मधुमक्खियाँ भी एक साथ काट ले तो इंसान मर सकता है, इतना जहर होता है। इतने जहरीले स्वभाव के कि हल्का सा छेड़ दो वो काट देती है, चाहे मर जाए, खुद मरती है। जब वो शहद की मक्खी काटती है ना, आपको काटने के बाद डंक अंतर में रह जाता है उसका और उसके प्राण निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है मैं काटूंगी, फिर भी मर भी जाऊंगी तो भी काटती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना करवा, इतना जहरीला स्वभाव कि मर जाऊंगी पर काटूंगी। पातशाह कहते हैं ऐसे ही हमारे स्वभाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ालू स्वभाव है, लड़ने के स्वभाव है, कामी है, क्रोधी है, लोभी। पर जब हम इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाते हैं, शहद की मक्खियाँ जहरीली हैं, इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं तो शहद प्रकट हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे कितना जहर भरा है उनमें, पर जब इकट्ठी होकर बैठती है छत्ते पे तो अमृत जैसा हनी शहद प्रकट हो जाता है। पातशाह समझाते हैं जैसे ही हम सब कड़वे स्वभाव वाले इकट्ठे होकर गुरु के चरणों में आके सत्संग में बैठते हैं, सत्संग का रूप होकर बैठते हैं, सत्संगी बन जाते हैं, हमारे जहरीले स्वभाव उस वक्त तब्दील हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का अमृत प्रकट हो जाता है चाहे कोई कैसा भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती बात है साथ संगत जी। जहरीले स्वभाव है। अब सोचो जब सत्संग में बैठे होते तो कितने कैसे पॉजिटिव ख्यालात आते हैं कि मैं घर जाके भी नाम जपूंगा, कि मैं पूरा दिन नाम जपूंगा, कि अब आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा। सारे नेक ख्याल यहाँ पे आते हैं, चाहे बाहर जाके कर सको या नहीं कर सको। यहाँ पर पॉजिटिव चढ़ती कला में रहता है मन। क्यों? गुरु के शरण में बैठी हैं, उनके चरणों में, गुरु के चरणों में। उत्तम भाग हैं हमारे, उत्तम। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़े भाग्य। ज्योतिषी को हाथ दिखाते हो ना, भाग्य कैसा है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर सत्संग में आते हो तो ज्योतिषी का कहा हुआ लिखा हुआ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रोज़ के रोज़ यहाँ पे कर्म बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान जब माथा टेकता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं उस दिन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सत्संगी क्या है? कर्म रेखा कोई मायने नहीं रखती कि कर्म रेखा क्या है। सत्संगी है, रोज अमृत लौट के नाम जपता है, गुरु के चरणों में आके माथा टेकता है, उस दिन के सारे बुरे कर्म उसके खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ एक पंक्तियां पढ़े। सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो
साध संग ओए दुष्ट वस होते। हर्ष से बोलिए धन गुरु। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, कितना ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। सत्संग की महिमा क्या है। काम वासना हमसे कंट्रोल नहीं होती, आंखें बुरा देखती है, मन बुरा सोचता है। लोग नाम जप कर भी थक जाते हैं कि कंट्रोल नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि मुनि फेल हो गए, काम वासना नहीं कंट्रोल होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ लालच हमारा खत्म नहीं होता। अभी अभी बात की लालच की। क्रोध गुस्सा आ जाता है, बाद में पछताते हैं कि गुस्सा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार वो तो खत्म ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, लगभग नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह, मोह में फंसे हुए हैं। मोह में फंसे ही सारे जितने भी गलत काम रिश्वत खाते हैं लोग क्यों खाते हैं? परिवार के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुश्तों तक खाए बैठ के हमारा परिवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि मरते ही संबंध खत्म हो जाता है, कोई लेना देना नहीं रहता किसी का किसी से। और जिस परिवार के लिए करते हैं, लेखा उन्हें नहीं, लेखा जिसे ने कमाया है उसे देना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे गलत धन से कमाए हुए धन से बनाए हुए मकान में रहेगा कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खर्चेगा कोई और तेरे कमाए हुए धन को, हिसाब तुझे देना पड़ेगा कि कमाया कैसे था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी भी तरह से बस में नहीं आते। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, सुन मेरी बात। उनते राख है बाप न माई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों से ना पिता रक्षा कर सकता है ना माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनते राख है मीत ना भाई, ना मित्र उससे रक्षा कर सकते हैं ना भाई उससे रक्षा कर सकते हैं। दर्भ से आने पर ना ओए रहते, चाहे कितना मर्जी रिश्वत खिला दो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, धन दे दो कि छोड़ दे मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ में नहीं आते। कहते एक काम कर ले, ये सारे तेरे बस में आ जाएंगे। आज ये मालिक बनकर तेरे सर पे बैठे हैं, अगर तू ये काम नित्य करता रहा ये तेरे नौकर बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग ओए दुष्ट वश होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पांच विकार सत्संगत में जो आ गया गुरु के शरण में। एक पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या है, सबदू वड्डे पाग गुर सिक्खा के जो गुरु चरणी सिख पढ़ते हैं का भाव समझ लेना। माथा सब टेकते हैं, माथा टेकने का भाव होता है अपनी माथा छोड़ के पड़ गया कि तू जो कहेगा बस वही ठीक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्मत छोड़ दी गुरुमत ले ली, उसे कहते हैं पढ़ते हैं। अगर हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कंट्रोल में नहीं आ रहा, हम पर सत्संग की जो भी पॉजिटिवनेस है वो असर नहीं कर रही, उसका मकसद मतलब एक ही है, हमने सिर झुकाया है, मन नहीं झुकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन झुकाया है, मन नहीं। जो गुरु चरणी से पढ़ते हैं, जो पढ़ गया भाव। जब आदमी सब जगह से हार जाता है ना तो आके गिर पड़ता है। हार पर्या में तेरे द्वारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पातशाह मैं तेरे दर पे आके आ पड़ा हूँ, वो कोई रास्ता नहीं, तू चाहे मार चाहे रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई इस प्रकार से उसकी शरण में आता है ना कि तू जो कहे मैं वो करूँगा, वो कहता भी क्या है साथ संगत जी, आपसे मांगता भी क्या है, हमसे गुरु क्या मांगता है? एक सच्चा सुच्चा जीवन बस। धन तो वो मांगता ही नहीं, धन तो हम इसलिए देते हैं कि देंगे तो ज्यादा मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे धन से नहीं खरीदा जा सकता। कोई सोचे मैं 10 करोड़ चढ़ा दूं गुरु मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मत छोड़ने से वो मिलता है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, ये सुमत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुरु चरणी
के सब दुवटे आग गुर सिखा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी मुसलमान पीर, कमाई वाला पीर फकीर, इसका नाम कई बार आया है, आपने सुने होंगे उनके दृष्टांत। वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनके जो शागिर्द थे, एक दिन उनमें से किसी ने सवाल किया कि उस्ताद जी एक बात बताइए, कि आपके चेहरे पे हमेशा शांति बनी रहती है, एक इलाही नूर है आपके चेहरे पर, कभी भी आपको विचलित होते हुए नहीं देखा किसी भी बात पर। आप हमेशा एक संतुष्ट, एक खुश, एक ऐसा पहलू है जो दूसरे किसी में दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें विद्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, ये जो आपके पास है ये मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारे पॉइंट है साथ संगत जी। ऐसे शिष्य भी धन्य है जो ऐसा सवाल पूछे कि अगर आपके पास संतुष्टि है तो मेरे पास क्यों नहीं? आपके पास है, आप हमारे गुरु हो, मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें शिक्षा पढ़ा रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो जो आपके पास ये अवस्था है ये हमें क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी ने क्या किया, अपनी घरवाली को आवाज़ मारी, कहने लगे सुनो, मुल्तानी मिट्टी लेके आओ, मुझे हाथ धोने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली मुल्तानी मिट्टी लेकर आई। उस ज़माने में ना साबुन वगैरह नहीं होते थे, मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोए जाते थे, मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हाथ धोए जब और अपने हाथों को सूंघने लगे, शिष्यों ने फिर से सवाल किया कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा आपसे कि जो आपके पास संतुष्टि है, शांति है, वो हमारे पास नहीं, हमें क्यों नहीं देते? आपके पास कहाँ से आई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे मैं मिट्टी से सवाल ही पूछ रहा हूँ, जब वो मिट्टी जवाब दे देगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहते मैंने मिट्टी से इसलिए हाथ धोए, सवाल पूछ रहा हूँ मिट्टी से, मिट्टी जवाब दे देगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। सब चुप कर गए, थोड़ी देर तक हाथ सूंघते रहे और फिर शेख सादी जी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे कि मैंने मिट्टी से पूछा कि तुझ में इतनी सुगंधी कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सुगंधी तुझ में कैसे आई? तू तो मिट्टी है। मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ से सुगंध आने लगी। तो मिट्टी ने जवाब दिया मैं तो मिट्टी हूँ, मेरी अपनी कोई सुगंधी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुझे गंदे पानी में डाल दोगे तो मैं कीचड़ हो जाऊंगी, बदबू देने लग जाऊंगी, पर मैं जहाँ से आई हूँ मैंने फूलों के गमले की संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूलों का गमला था, उसके फूल मुरझाकर गिरते थे, उनकी पत्तियाँ मुझ में गिरती थी, मैंने उन पत्तियों की संगत की है, इसीलिए मुझ में खुशबू आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे मैं एक शरीर हूँ, मिट्टी हूँ। अपने शागिर्दों से कहने लगे मैं शरीर हूँ, मिट्टी हूँ, मुझ में संतोष नहीं, मुझ में इलाही नूर नहीं, मैंने संगत की है इलाही नूर वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने संगत की है संतों महापुरुषों की, पीरों फकीरों की, इसलिए मुझ में ये गुण आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे हम संगत किसकी करते हैं रोज आके साथ संगत? कभी विचार किया है? यहाँ पे आप संगत करते हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम संगत करते हैं, रोज दर्शन करते हैं आंखों से गुरु नानक के। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, धन धन श्री गुरु। संगत करते हैं उसकी बाणी के, वो जो कहते हैं वो सुनते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। एक दिन आएगा ये सारे गुण एक ओंकार से लेकर नानक उसी बीसस तक, गुरु प्रसाद तक, जितने भी गुण हैं हमें प्रवेश करने लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सत्य नाम सच आ जाएगा, एक से मन जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है, लोग तरसते हैं, पाठ करते हैं मन नहीं जुड़ता, नाम जपते हैं मन नहीं जुड़ता।
मन जुड़ जाएगा एक ओंकार। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम, सच अच्छा लगने लगेगा, सच बोलने लगेंगे, सच सुनने लगेंगे। कर्ता पुरख, ये सारा एक प्रकरण लिया हुआ है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत, सत्संग के लाभ। सत्संग वो चीज है, सत्संग, सत्संग, संगत की बात नहीं कर रहा, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको, सारे बोलिए जिथे एको नाम की बात हो। सुई, छोटी सी सुई लोहे की, पानी में डालो डूब जाती है। लोहे का जहाज टनों का तैरता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसी सुई को लकड़ी पे रख दो, पानी में डालो, नहीं डूबेगी। क्यों? संगत हो गई लकड़ी की। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब नहीं डूब रही, लोया ही है, पर संगत किसकी हो गई? लकड़ी की। अब नहीं डूब रही। कपास, आग लगाओ जल जाएगी। उसी कपास को संगत हो गई घी की। अब उसकी बाती बना के घी जल रहा है, कपास नहीं जल रही। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। संगत हो गई कपास को घी की, जलने से बच गई। लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। कागज है, पानी में डालो गल जाएगा। तेल लगा दो कागज को, पानी में डालो, अब नहीं गल रहा। संगत हो गई तेल की, कागज गलने से बच गया। महापुरुष समझाते थे, सुई को संगत हो गई, लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। रुई को संगत हो गई घी की, जलने से बच गया। कागज को संगत हो गई तेल की, गलने से बच गया। कहते तू सत्संगत में आके बैठ जा, तो भव सागर से तर जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। डूबेगा नहीं, डूबने से बच जाएगा। गर्भ की अग्नि तुझे गलाएगी नहीं, तू गलने से बच जाएगा। नरक की अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, जलने से बच जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत के लाभ अगर गिनाने बैठे तो पता नहीं कितने प्रकरण दास पहले ले चुका और कितने लेता रहेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत मिल गई, मानो उसने एक सही रास्ता पकड़ लिया। रास्ता बहुत जरूरी होता है सही, क्योंकि रास्ता अगर सही ना हो, कितना भी चलते जाओ मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरी दो पंक्तियां पढ़ी। सब दू बड़े गुरु सिखा के, सब दू बड़े गुरु सिखा के। एक बार दास, एक बार सारी संगत, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दास और संगत। सारे गुरु से अरदास भी करना मन ही मन के, हमारे बाग भी इतने बड़े कर दे कि तेरे चरणों में आके मन को गिरा दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तन तो रोज गिराते हैं, अच्छा तरस कर मेरा मन भी अर्पण कर सकूं मैं। सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, 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 सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि वशिष्ठ, आप सबने नाम सुन रखा होगा, श्री राम जी के गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि ऋषि वशिष्ठ, जितने भी उस समय के ऋषि मुनि थे सब उनके आगे सर झुकाते थे, महर्षि वशिष्ठ के आगे। क्यों? क्योंकि राम जी के गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये राम जी के गुरु क्यों बने, इसके पीछे बहुत बड़ा प्यारा पहलू है, वो किसी और दिन लेंगे। कैसे उन्हें ये वड्याई मिली, इसके पीछे बड़ी प्यारी और मोटिवेशनल घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ, उसी समय एक महर्षि हुए हैं बड़े कमाई वाले, जिनका नाम है ऋषि विश्वामित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतिहास स्टोरी है, माइथोलॉजी है हमारे सनातन धर्म की, सुन लीजिए, बड़े काम की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है कि कई युग तप किया था, कुछ 1000 साल नहीं, युगों तक, युग बदल जाते थे, वो तप करते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्हें इस बात का बड़ा अहंकार था कि मैंने युगों तक तप किया, मुझसे बड़ा ऋषि कोई नहीं। पर सत्कार होता है विशिष्ट ऋषि का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, देखकर खड़े हो गए। ऋषि वशिष्ठ जी की बड़ी कमाई वाले, बड़ी विनम्रता वाले थे महर्षि वशिष्ठ। खड़े हो गए, कहने लगे, आइए राज ऋषि आइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा उन्हें विश्वामित्र जी को? राज ऋषि। विश्वामित्र नाराज हो गए, मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा, सबसे बड़ी पदवी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज ऋषि क्यों कहा? पर ऋषि वशिष्ठ जो देखते थे वो कहते थे। ऋषि विश्वामित्र राजाओं के ठाट बाट की तरह रहते थे, जैसे राजा रहते हैं, लाव लश्कर के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आए तो उन्होंने राज ऋषि कहा, पर विश्वामित्र सोचते मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा। वो सारे ऋषियों से कहने लगे, मुझे ब्रह्म ऋषि कहा करो। सारे ऋषि मुनि कहने लगे, हम नहीं कह सकते, जब तक ऋषि वशिष्ठ आपको ब्रह्म ऋषि ना कहे, खिताब वही दे सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बार बार महर्षि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ को मिलने जाते थे, महर्षि वशिष्ठ को, कि शायद मुझे ब्रह्म ऋषि कह दें, पर हर बार राज ऋषि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वामित्र जितने क्रोधित हो गए, उन्होंने उसके सारे पुत्रों का कत्ल कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए किया तप है, कर क्या रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे एक पॉइंट था, थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे बीच में आते जो शायद काम आ जाए किसी को। उसका इस कथा से कोई लेना देना नहीं है, पर कीमती है। जब हम नाम जपते हैं कुछ बनने के लिए, थोड़ा ध्यान देना, नाम जपना भी दो तरह का होता है। एक प्रभु को पाने के लिए, एक दुनियावी चीज़ें पाने के लिए, और एक प्रभुता पाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दुनिया हमें पूजे। जब हम इस विचार से नाम जपते हैं तो इतना अहंकार बढ़ जाता है कि जो भी कमाई की होती है ना, जो कुछ भी कमाया हो वो गवा बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भक्ति की हो गलत विचार मन में रख के और उसे प्रफुल्लित हो गई हो। इतिहास पढ़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं संतों की जरूरत है, सत्संगत की जरूरत है। यहाँ पर ये ज्ञान मिलता है। अगर किसी के सर पर पूर्ण महापुरुष हो, उसका जपा हुआ एक सेकंड का नाम वो बचा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कईयों से बैठकर नाम जपवाते थे, अपनी निगरानी में उनके मन के ऊपर नजर रख के उनका जपा हुआ सार्थक होता था। अवस्थाएं लेकर जाते थे। जो अकेले बैठकर कोशिश करते हैं, मुबारक है, और दास किया करो पूर्ण संत की संगत मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी निगाह में आकर कोई नाम जपता है
तो उनकी ड्यूटी होती है उस नाम को प्रफुल्लित करना कि हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि विश्वामित्र क्रोध में आके सारे पुत्रों का वध कर दिया, पर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन ऋषि विश्वामित्र काफ़ी दिनों बाद उनके घर के पास से गुजरा, तो लाव लश्कर को दूर छोड़ के सोचने लगा बाहर जाके सुनो मेरे बारे में क्या बातें करती हैं, ये बातें क्या करती हैं, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ गृहस्थी ऋषि थे। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी घरवाली थी, उनके बच्चे थे। महर्षि विश्वामित्र वो ब्रह्मचारी थे। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ अपनी घरवाली से बातें कर रहे हैं, तो घरवाली पूछती है इस समय सबसे बड़े ऋषि कौन है कमाई, जिनके तप बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा इस वक्त सबसे बड़े तपी अगर कोई है तो वह है महर्षि विश्वामित्र। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुनते ही विश्वामित्र हैरान हो गए, मैंने इनके सारे पुत्र का वध कर दिया, ये अब भी मेरी तारीफ करने के सबसे बड़ा मैं हूँ। महर्षि फटाफट अंदर चले गए, सामने आके प्रकट हो गए, कहने के मुझे बात बताओ कि अभी आपने मेरी तारीफ की। कहने लगे आओ ब्रह्म ऋषि आइए। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते आज मुझे कहा है इतने सालों बाद ब्रह्म ऋषि, पहले कह देते तो मैं आपके पुत्रों का वध ना करता क्रोध में आकर, और मैं इतना गलत काम किया आपके साथ, फिर भी आप मेरी तारीफ कर रहे हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पहले क्यों नहीं खिताब दिया ब्रह्म ऋषि का? तो वो कहने लगे पहले तो हमेशा लाभ लक्ष्य के साथ आए हो, इसलिए राज ऋषि का आज अकेले आए हो, विनम्र होकर आए हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो विश्वामित्र ने आंखें शर्मिंदा हो गई, सर झुका, कहने लगे मैंने आपके साथ घोर अन्याय किए, बहुत बड़ा पाप हुआ मुझसे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, आज का टॉपिक है सत्संगत। सत्संगत क्या है इसे समझ लो। बाबा नंद सिंह जी ये बार बार समझाते थे, बार बार ये पॉइंट कहते थे कोई ऋषि मुनि हजारों साल उल्टा लटक कर तप कर ले, उल्टा लटक कर, पर मुकाबला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहले घटना सुन ले। कहने लगे मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो। तो महर्षि वशिष्ठ कहने लगे मैं मांगूंगा, सुना है कि नहीं मांगना चाहिए, हम छोटी चीज़ मांग लेंगे, आप कुछ बड़ा दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपका जो मन है वो दे दो। तो महर्षि विश्वामित्र कहने लगे मैं अपने 100 साल का तप का फल तुम्हें देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने युगों तक तप किया, मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत तपी हूँ मैं, तो मैं अपने 100 साल की भक्ति का फल तुम्हें देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महर्षि वशिष्ठ ने ऐसे हाथ करके जोली वाले कहने लगे धन्यवाद, तो अब मेरे घर पे आओ, मैं भी आपको कुछ दे दूँ। कहने लगे दे दो, आपका जो मन करे। कहने लगे मैं आपको अपने जीवन में मैंने जो सत्संग किया है, संतों की संगत में बैठकर नाम जपा है, उसमें से आधी घड़ी का सत्संग, आधी घड़ी सत्संगत जो होती है, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 12 मिनट के सत्संग का फल मैं आपको देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आधी घड़ी का। तो ऋषि विश्वामित्र फिर से क्रोधित हो गए, मैंने तुम्हें 100 साल की बंदगी दी, तुम केवल आधी घड़ी का सत्संग दे रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे मेरे पास जो मुझे बड़ा लगा मैंने दिया, जो आपको बड़ा लगा आपने दिया, मेरी नज़रों में इससे बड़ा कुछ है नहीं। कहने लगे नहीं, तब से बड़ा क्या हो सकता है। आपस में बहस शुरू हो गए। 10 शॉर्ट में ले क्योंकि समय हो गया है। मेरा मन था 5:30 भोग डाल दूँ, पर थोड़ा लेट शुरू हुआ, किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी 2-4 दिन स्टार्टिंग में। शॉर्ट में दास लेता है। विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए, तो उन्होंने आखिर में भेजा शेषनाग के पास कि वो इसका निर्णय करेंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों शेषनाग के चरणों में खड़े हैं और कहने लगे हमारा निर्णय करो कि तप बड़ा है या सत्संग। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आधी घड़ी का सत्संग मुझे कहता कि ये बड़ा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो शेषनाग ने कहा कि देखो मेरे सर पे पृथ्वी का भार है, पृथ्वी उठा के खड़ा हो, मुझे जवाब देना तो पहले तो मेरे वजन उठाओ मेरे सर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उठा लेगा फिर मैं जवाब देता हूँ फ्री होकर। तो विश्वामित्र कहने लगे मैं 100 साल की बंदगी पृथ्वी से कहा, संकल्प किया जल लेके कि रुक जा, शेषनाग को थोड़ा विश्राम दे दे, मैं अपनी तप के बल से तुझे कहता हूँ रुक जा, 100 साल के तप के बल से। पर पृथ्वी ना रुकी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डोलने लगी। ये मिथिहास है, माइथोलॉजी। इतिहास और मिथिहास में क्या फ़र्क होता है दास थोड़ा सा बता दें। एक होता है इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। एक होता है मिस्ट्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिथिहास है हमारे इतिहास से, पर इसके कोई प्रूफ नहीं है। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इससे ज्ञान लिया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि पढ़े लिखे युवा बैठे कहेंगे कौन पृथ्वी के नीचे कहाँ शेषनाग है, क्योंकि यहाँ भी लिखा है कि बैल संग पे उठा के बैठा है। अगर हमारे वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो पृथ्वी को कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो माइथोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा लेने के लिए होती है ये चीज़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जिस पे कोई विश्वास कर ले तो है, नहीं करे तो नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहा लिखा है कि विश्वामित्र जी ने आस्ते आस्ते अपने सारे युगों का फल दे दिया कि पृथ्वी रुक जा, पृथ्वी नहीं डोलने लगी कि नहीं शेषनाग उठाएगा तो ही मैं ठहर सकती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हार गया विश्वामित्र। अब शेषनाग ने कहा कि अब आप अपना सत्संग का फल दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैं 12 मिनट आधी घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ तुझे, रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी इतिहास में लिखा है कि वो पृथ्वी ठहर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए महर्षि विश्वामित्र। शेषनाग कहने लगा अभी भी कोई प्रूफ चाहिए कि मैं बताऊं कि क्या बड़ा है, तप या सत्संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के वचन, कोई हजारों साल उल्टा लटक के तप कर ले, एक घड़ी का कोई सत्संग मन जोड़ कर ले, मन जोड़ कर, एक घड़ी का 24 मिनट का, उसकी तुलना नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कबीर जी कहते हैं अपने बड़े भाग्य समझा करो कि गुरु ने हमें अमृत वेले उठा के सत्संग में बिठाया है। ये नॉर्मल सत्संग नहीं है, ये दिन का सत्संग नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का, एम्ब्रोसियल पीरियड का सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त हॉस्पिटलों में कई रो रहे हैं बैठे, कई पुलिस स्टेशनों में धक्के खा रहे, कोई कहाँ तरस गुरु नानक का अपने चरणों में बैकुंठ में बिठाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ ते आ भगतन से ती गोसटे जोगिने सोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घड़ी कहते एक घड़ी सत्संग नहीं कर सकता तो आधी घड़ी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे से आधी भी नहीं होती, उससे आधी कर ले, 6 मिनट बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे भी आधी कर ले, 3 मिनट बैठ जा, पर बैठ जा। क्यों? तेरा लाभ ही लाभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजे जनक ने एक घड़ी का सत्संग देकर सारे नरक खाली करवा लिए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे नरक। धर्मराज से कहा था ये मैं अपने एक घड़ी के सत्संग का पुण्य देता हूँ, इसके बदले सबको माफ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज को सारे नरक खाली करने पड़े। ये घटना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है, सारी वाणी में शब्द है इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के कारण पापी तरे अनेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 धारणा पढ़ लेते हैं। कोई करन नसीबा वाले सत्संग 2 कड़ियाँ, नसीबा वाले सत्संग 2 कड़ियाँ। कोई करन नसीबा वाले सत्संग 2 कड़ियाँ। कोई करन नसीबा वाले सत्संग
सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया। कोई करण नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया, कोई करण नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया। सत्संग जी दो कड़िया, सत्संग जी दो कड़िया, सत्संग जी दो कड़िया, सत्संग जी दो कड़िया। कोई करण नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया, कोई करण नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया। गुरु अमरदास जी, संगत ने सवाल किया, पातशाह दुनिया जल रही है, इतिहास में नाम आया भाई केदारी। सवाल किया गुरु अमरदास जी के, पातशाह दुनिया जल रही है, मेरा मन भी उससे अछूता नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग जलाती रहती है, मन शांत नहीं हो पाता, क्या करूं। गुरु अमरदास जी कहने लगा, जब जंगल में आग लगती है जानवर किस तरफ दौड़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब जंगल में आग लगती है इंसान कहाँ दौड़ता है, जानवर किस तरफ दौड़ता है? कहने लगे पानी की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे बस यही तेरे सवाल का जवाब है। जब जंगल में आग लगे हिरन पानी की तरफ दौड़ता है, जब मन में आग लगे ना सत्संग की तरफ दौड़ पड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन शांत हो जाएगा। अपने अपने मन पर अभी झांको, मन शांत है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी जो मन को शांति प्राप्त है घर में है उनके पास है जिनके हृदय में नाम चलता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनका सत्संग यहाँ पे आनंद से पड़े तो भोग न पड़ जाए, ऐसा नहीं। बाबा नानक सिंह जी कहते थे उस दिन का इंतजार करो जब यहाँ पे भोग पड़ जाए, पर यहाँ पर भोग ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग चलता ही रह जाए, जिसे अजप्पा जाप कहते हैं। मन जुड़ा ही रह जाए, चाहे बातें कर रहे हो, चाहे बातें सुन रहे हो, अंदर सिमरन चलता रह जाए। उस दिन का इंतजार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मिलेगी दात, क्योंकि वो दात यहीं से मिलती है, जरूर मिलेगी। अपने गुरु पे विश्वास रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये नहीं दे सकता ना, बाबा नानक सिंह जी कहते थे अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से किसी की पूरी नहीं पड़ी ना, तो उसकी कहीं से भी पूरी नहीं पड़ सकती। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सब दू बटे भाग गुर सिखा के, सब दू बटे भाग गुर सिखा के, सब दू बटे भाग गुर सिखा के, सब दू बटे भाग गुर सिखा के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ। सब दू बटे भाग गुर सिखा के, 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 सब दू बटे सब दू बटे गुर सिखा के, सब दू बटे गुर सिखा के, सब दू बटे
गुरु सिखा के सब तू बटे भाग गुर सिखा के गुरु सिखा के गुर सिखा के गुरु सिखा के गुर सिखा के जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ 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 सब तू बटे गुर सिखा के सब दू बड़े भाग गुर सिखा के धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां गावो हरि तेरा मन दिवसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रोहर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना नाम समरस स्वामी सुख मनो विसारे करे नानक मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिलते सो पावे सदा तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया कर शान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया कुर्बान पिता गुरु मिटो जिसियारे बढ़ाइया करे नानक सुनो संतो सबतरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कल्ला जी करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया पाया तो जिनको से नाम के लागे करे नानक रस को आदित करे नदवाजे मन सुनो बड़ बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप करे सुनी सच्ची बानी संग साधन पाए सबसे पूरे दुटे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनह तुरे सलो अमन गुरु पानी पिता माता दत्त महात्म दूसरा बजाई माया तेलिया सबल सदात चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ते आया वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
वाहे गुरु 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 ओ वाहे गुरु 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 वाहे जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी की।